Namaskar, Hari Om. Welcome everybody in this yoga session organized by Bharti Infratel in collaboration with Spandan Yoga. I'm Narendra Kumar. So let us sit in any meditative posture. We already have discussed Sukhasan. This is Sukhasan. Again, I will briefly go into this. Comfortably, this is Sukhasan. This is Ardha Padmasan. This is Padmasan. Swastikasana. In between will calf and hip muscle, interlocking your toes. This is Swastikasana. It gives stability to your lower body. You can sit comfortably without any movements. Now close your eyes. Try to concentrate on your eyebrow center. भ्रूमध्य के ऊपर ध्यान देंगे. आंखें बंद. दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे. गुरु प्रणाम या इष्ट देवी देवता या जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान करते हुए उनको नमन करना है. शुरुआत करने के पहले स्पाइन में कोई ट्विस्ट नहीं आने देना है. फोरहेड ऑन टू द ग्राउंड. Slowly first raise your head. Shanti mantra for the whole world, for everybody. Om Asito Ma Sabigamaya Tamso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Now get up. We shall be doing joint movements starting from your head to toe. So first, you stand on your both the feet, sole of feet little apart, neck head straight, and please put off your mic. Video may be put on, mic must be put off, otherwise unnecessary voices will interrupt. Thank you. Now while inhalation, your head will go back. Exhalation, it will come forward. We already have discussed about it. We will make it fast to 7 times. Exhale, come forward. 5 to 10 times. You have to do it. Exhale, inhale, exhale, inhale. Then side. Try to touch your ear. Bring your ear onto your respective soleus. My left ear, left soldier. Breathe out. Breathe in. 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 Breathe out. Now twisting. While twisting, breathe out. While returning to the central position, breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Now rotation, circular movement. While going back, breathe in. While coming to the central position, downward, breathe out.
Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. 5 to 10 counts. Now reverse. Same. Okay. Tadasana. Rather, we should have started with Tadasana. It's okay. Pull your spine upwards onto your toes. इंटरकोस्टल गैप को खींचने का है ऊपर की तरफ, बाजू कानों से सटा हुआ. रिलैक्स अगेन 5 to 10 times. 5 to 10 times. Okay, then we shall be doing soldier pull. Interlock your wrists. Okay, now Skand Chakra. Soldier rotation. This, while going up, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 5 to 10 times, then reverse. I'm doing it a little faster. You need not to go very slow, particularly during initial stage. Now, Kati Chalan. Yesterday we did like this, perhaps. This is also one way of doing. We shall be doing now like this. While twisting, breathe out. Waist down, there should not be any twisting. Twisting will happen only waist up. Waist down will give resistance to your twisting. This you have to do 30 to 40 times. Slowly, 5, 10, 1. This side, 1 count. This side, 2 counts. Like you have to do, you start with 5, go up to 30 to 40. Now, for your palms. Then, Mani Chakra rotation. Reverse. Very simple, very, very powerful. Palms up, breathe out, arms horizontal to the ground. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. 10 times every day you have to do it. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Simple. Okay, relax. Now, in between, also try to do eye movements. Eye movements, you can sit or you can stand, no issues. Now, try to concentrate on infinity. Look at infinity, horizontal to the ground. Then bring your vision at the top of your nose. Then again on the infinity. So focal length is being varied from infinity to the nearest one. So that is the purpose. So that your lens flexibility, it retains its flexibility. Infinity on the tip of your nose. Infinity on the tip of your nose.
and try to retain there for some time. Then towards left, towards right, towards left, towards right, towards left, towards right, upside and down. This you can do by standing or by sitting. Up, down, up, down. Then rotation. Bigger circle, one way. Then reverse. Your head should not move. Eye should follow the tip of your thumb. This. So this you have to do every day. Then squeezing of your eyes. Comfortably, slowly. For eyes. Now Tiryak Tadasana. This you can do at the start. Gap between your legs will be, your shoulder will apart or a little wider. Breathe in, central position, breathe out. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. This 10 cycles you have to do. Now you have to do hip rotation, okay, by utilizing your core muscles. We discussed there are 2 ways of doing this. We shall be utilizing the core muscles. 20 times each side, reverse. And feel the muscles getting activated, muscles getting in use. Okay, now quickly we are coming to this knees rotation. 10 times each side. I am doing lesser to save on time. Right? Then Utkatasana or Ghutna Sanchalan we did like this, horizontal to the ground and up, horizontal to the ground and up. And this need not to go 90 degrees if you are not comfortable. Do as much as comfortable to you. Now we shall be sitting down. Fine. Spread your legs in front of you, touching each other. Your spine should be straight. Neck, head you can tilt a little backward in a relaxed manner. Now with fingers, pull your fingers back, then forward, back, then forward, like that. 10 times. Then ankle movements, rotation. I'm going a bit fast so that we can save time for other. Reverse. Every day you have to do whatever we are doing every squeeze, relax, squeeze, relax. 10 times you have to do it. Then this movement, ankle movements, you have to do 10 times, then reverse, right? Same other side, 10 times. Ankle rotation, reverse, right? Then this rotation. Every day you have to do it for all the joints. It is very much required. Then reverse, other side, reverse. Then one day you can do like this, other day you can drop.
this circle reverse. We discussed about it and practiced also this. Reverse 10 times each. Then Ardha Titli Asana. By bringing your leg on the left leg on the top of your thigh of right leg, then try to bring it down. Start slowly, but do it later on faster. Change other side, same. Then butterfly, full butterfly, Purna Titli Asana, like this. Then Baddha Konasana. Every day you have to do this. You have to bring your forehead onto the ground and your chin touching the big toes. अंगूठा, पैर के अंगूठे को टच करेगा. स्पाइन में कोई भी बेंड नहीं आएगा. नहीं आने देने का प्रयास करना है. अगर बेंड नहीं होता है, जबरदस्ती नहीं करनी. यू हैव टू गो वेरी स्लोली. हिप को टर्न करने का है. टिल बोन रहेगा और हड्डियां जो रहती हैं उस पर आप बैठेंगे. ये एडजस्ट कीजिए सामने की तरफ. Simply drop your forehead. Lift your head. Return back. Every day if you will do it, slowly, slowly the flexibility will come. Now, Baddha Padmasana. Those who are able to do Padmasana, they will, every day they will practice. Unless they practice, the flexibility will go. Every day without fail. Whatever leg is at the top, you have to grab the big toe of that leg, wrapping around your same leg. My left leg is on top of my right leg. So left hand will grab the big toe of left leg. Adjust your body. Then right toe. Adjust your body. Adjust. Then try to same, bring your forehead onto the ground. Slowly lifting and try to retain there for some time. Once you practice it comfortably, you can stay there for longer duration without any discomfort. So we did. Now we shall be doing Supta Vajrasan we did, Supta Virasan we did. So right now we shall be doing Ustrasan. This also we have practiced on International Yoga Day. So this onto your knees, your right hand, slowly it will come down and rest on the sole of your right foot, left hand, palms on the left sole of the foot. Slowly lift your hands and come to Vajrasana. Now quickly Gomukhasana we did. Today also we will do. Every day we have to practice. Gomukhasana. Right leg is at the top of the left leg. This posture, left hand, this sole of foot will be beside your right buttock and right sole of foot beside your left buttock. Right leg is on top of left leg, so right hand will go from top. Duration will increase. I am economizing on time. Same. Same. Ardha Matsyendrasana. I feel
you will be able to grasp it. So quickly, with suppleness, you move, transit from one posture to another posture. But in your daily life, go slow. This is twist. Your right leg will come by the folded left thighs. Adjust your body like this. Twist. Stage 2, 3 are there. Who are those who are comfortable with this? They will do the stage 2 and 3 for more twist, for giving more twist. Same change. Yeah, do it. Janu Sirsasana. 2 days we did 2 variations. One variation was this. Right leg stretched, left sole of foot touching your inside of thighs, right thighs, and your heel at the perineum. This, and by bringing this back. And then bending this side, middle, and towards your knees. So today we shall be doing like this. Alternate day. Every day you have to do a different variation. वो ऐसा नहीं लगेगा कि एक ही चीज कर रहे हैं, तो देयर आर वेरिएशंस. नयापन कुछ लगेगा कि हम नया कल कर लिया तो आज इसको ऐसे कर रहे हैं. और सेम वी डिड इट. So for that, in detail, you watch the earlier video. Forward. Up. Relax. ये जितना कंफर्टेबली करना है उतना करेंगे, ज्यादा. और स्पाइन के अंदर कुवड़ नहीं बनाएंगे, मोड़ेंगे नहीं, कर्व नहीं करेंगे, इसको कर्व नहीं करेंगे. जहां तक संभव झुकने पा रहे हैं ठीक है, नहीं झुकने पा रहे हैं प्रयास करेंगे, एक दिन आप झुकने पाएंगे. स्पाइन को ऊपर खींचेंगे. ये कर लिया हम लोगों ने. अब हम लोग लेट करके करने वाले कुछ कर लेंगे. भू नमनासन और जठर परिवर्तनासन हम लोग करेंगे. पिछली बार हम लोगों ने घुटने को लेट जाएंगे शवासन में. पिछली बार घुटने को अगर हम लोगों ने मोड़ करके किया था तो कंधे के बराबर दूरी कर देंगे, अगर कंधे के बराबर दूरी किया था तो मोड़ लेंगे. और इसमें भी है, आप एक चीज गौर कीजिएगा, ये हिल्स ऑफ फुट है, आपके बटक्स के जितना करीब आता है और आप जब नीचे की तरफ लाते हैं तो लंबर एरिया में L1 से L5 के डिफरेंट रीजन को ये स्ट्रेच करता है. इसको ध्यान देने का है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं. जैसे मिला करके रखने का है तो थोड़ा नीचे की ओर कर लेंगे और तब उसके बाद चेंज करेंगे. फील द स्ट्रेच कहां से आ रही है उसको गौर करेंगे. थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर चेंज करेंगे दूसरी तरफ. फिर एक दिन इस एरिया को कर लेंगे कवर, दूसरे दिन थोड़ा सा और बटक्स के नजदीक लाएंगे और तीसरे दिन बिल्कुल नजदीक ले आकर के फिर उसको कवर करेंगे. तो लंबर के डिफरेंट रीजन को वो मसाज करेगा, एक्टिवेट करेगा. ये बहुत जरूरी है. अवेयरनेस के साथ करेंगे कि कौन से हिस्से को पर प्रभाव डाल रहा है, सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, वो बहुत जरूरी है. ये कर लेंगे. उसके बाद जैसा हम लोगों ने किया था, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया जहां पर बटक से आपके यहां से 45 डिग्री पर बेंड करेंगे दोनों तरफ.
उसके बाद स्ट्रेट लाइन पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके, और उसके बाद 45 डिग्री इधर से। 3 जगह पर बेंड करेंगे जिससे लंबर एरिया पर तीनों जगह पर आप एक्टिवेट करने पाए। 15-15 बार करेंगे, 10-10 बार करेंगे, या 5-5 बार करेंगे। हॉरिजॉन्टल। बटक्स को प्रयास करेंगे जहां तक संभव हो न उठे, थोड़ा सा तो उठता है। 45 डिग्री। 45 डिग्री। ये देखेंगे जितना आप नजदीक करते हैं झुकेगा ऐसे, और आप बेंड कर रहे हैं, इधर बेंड कर रहे हैं, इधर बेंड कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करता है, L1 से L5 पे। तो इस चीज का ध्यान देंगे करने के लिए। शवासन पर लेट जाएंगे। चक्रासन का हम लोग प्रयास कर लेंगे। सपोर्ट भी आप लोग लेंगे। बहुत सारे टेक्निक है करने का। अगर पार्टनर साथ में है तो उसके साथ कैसे करेंगे, अकेले है तो कैसे करेंगे। तो प्रयास चक्रासन का। सीधा लेट जाएंगे, जो यंग है वो प्रयास करेंगे। घुटनों को मोड़ते हुए पंजे को नजदीक लाएंगे, कंधे के बराबर दोनों के बीच में गैप। पंजा ऐसे आएगा, देखिएगा, इसको गौर कीजिएगा, ऐसे आएगा कानों के पास। प्रिपेयर करेंगे खुद को। डीप इनहेलेशन एंड अप। जिनको बीपी है, हाई हार्ट का इश्यू है, कम डाउन, वो लोग थोड़ा सा अभी नहीं करेंगे। वन डे दे विल बी एबल टू डू इट। हाँ, कोई चीज ऐसा नहीं है कि आपका हार्ट का इश्यू है ठीक हो ही नहीं सकता, अनलेस बाईपास हो गया हो या ऐसी कोई चीज दुर्भाग्यपूर्ण हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी उसके आगे प्रयास करना है कि शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके पहले जो है, आराम से धीरे धीरे प्रयास करना है, थक जाए शवासन में लेटने का, एग्जर्ट नहीं करने का, हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालने का, बिल्कुल काम एंड कंपोज होकर के, छोड़ने का नहीं। करेंगे, थक जाएंगे, रेस्ट लेंगे शवासन में, फिर उठेंगे, एक ही बार होगा, धीरे से प्रयास करेंगे, धीरे से प्रयास करेंगे, कोई भी आसन का हो। मैं ऐसे बता रहा हूँ सिंबॉलिकली। प्रयास करेंगे, टायर्ड होंगे, रेस्ट लेंगे। प्रॉब्लम कब होती है कि जब आप एक्सटेंड करते हैं उस चीज को, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, अभी हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन का कर लेंगे। और हाँ, पवन मुक्तासन भी है पैरों का, ये हम लोगों ने बताया था, ये भी कर लेंगे आराम से 20 राउंड्स, देन विद बोथ द लेग्स। ठीक है, ये कर लेंगे। अभी हम लोग जो यंगर जनरेशन है, सर्कुलर मूवमेंट भी कराएंगे पैर का। किसी एक दिन वो ही कर लेंगे आप। इसको गोल गोल घुमाएंगे। देन रिवर्स। सेम विद अदर लेग। जितना बड़ा सर्किल बना सकते हैं बनाएंगे। रिवर्स। ये कर लेंगे। इसके बाद एक बड़ा, बहुत ही आपके वेस्ट के लिए, अगर साइड में फैट वगैरह है तो मेरु आकर्षण आसन। इसमें साइड में आ जाएंगे, हथेलियों पर सर को आराम से रख लेंगे, पैर स्ट्रेट एक के ऊपर, इसको उठा करके खींचेंगे जितना
सर की तरफ आएगा। उसके बाद मूवमेंट करेंगे, 1 2 3, डायनामिक में आ जाता है। ये कर लेंगे। ऐसा ही आप रिवर्स ऑर्डर में कर लेंगे। और घुटना मोड़ेंगे नहीं, घुटने में कोई बेंड नहीं आना चाहिए। मूवमेंट 1 2 3 4, साइड में 5 6 7, ये कर लेंगे। फिर थोड़ा सा थक जाएंगे तो शवासन में आराम से, टायर्ड है, हार्ट बीट को बहुत बढ़ने नहीं देना है, रिलैक्स रखना है। अभी हम लोग कर्ण पीड़ासन करेंगे। सर्वांगासन हम लोगों ने किया, हलासन भी किया। अभी उसके आगे का है यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर्ण पीड़ासन। धीरे धीरे करेंगे। जिनका हलासन में दिक्कत होती है वो पहले हलासन का करेंगे, उसके बाद कर्ण पीड़ासन करेंगे। ये सब आगे के लिए प्रिपरेटरी होगी, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप जाएंगे बहुत स्लोली। ओके, शवासन में लेटेंगे, पैरों को उठाएंगे, हलासन में जाएंगे। धीरे धीरे घुटने को कानों के पास, पंजा स्ट्रेट। रिलैक्स इन शवासन। ये स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा और इसके बहुत अच्छे परिणाम आगे चल करके आते हैं। तो तुरंत शायद बहुतों को परेशानी हो करने में, लेकिन टारगेट आपको मालूम होना चाहिए जाना कहाँ है, तभी आप आगे के लिए प्रयास करते रहेंगे। जहाँ ब्लॉकेजेस है शरीर के अंदर ज्वाइंट्स का, वो धीरे धीरे आप वर्कआउट करेंगे, उसको दूर करेंगे। टारगेट शुड बी केप्ट एट द हायर साइड, लेकिन उसमें कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं लेने का। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये कर लिया, अब सेतु बंधासन कर लेंगे क्योंकि बैक हम लोगों ने बेंड किए। तो फ्रंट बेंडिंग एक तरह से हुई, तो अभी उल्टे डायरेक्शन में सेतु बंधासन। पैर को नजदीक ले आएंगे, एंकल्स को ग्रैब कर लेंगे एंड अप। रिलैक्स 3 टाइम्स इसको करेंगे, हलासन एंड पश्चिमोत्तासन। ये फास्ट है, डायनेमिक के अंदर आता है। ये आपका स्पाइन को पूरी तरह से खोलेगा, है ना। और बड़े आराम से करने का है, कोई घबराहट नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, हलासन में जाएंगे, जितना जाने का, सामने आएंगे, पीछे जाएंगे, सामने आएंगे, पीछे जाएंगे, सामने आएंगे, पीछे जाएंगे। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी। ये फिर शवासन में रेस्ट करेंगे। रिलैक्स करेंगे, हार्ट बीट को नॉर्मल होने देंगे, उसमें कोई गड़बड़ी। तो खड़े हो जाएं, पैरों को वाइड कर लेंगे, दाहिना पंजा दाहिनी तरफ, घुटने को मोड़ेंगे। ठीक है, और इसको स्लाइड कराते हुए जैसे त्रिकोणासन में ले गए थे वैसे ही ले जाएंगे।
इसको कानों के ऊपर से नाउ रिटर्न अदर साइड सेम रिटर्न 3 times यू आर टू डू इट। होपफुली आपने समझ लिया, नहीं तो स्लो करके देखेंगे उसको। फिर से एक बार बताते हैं। दाहिनी तरफ झुकना है, दाहिना पंजा दाहिनी तरफ कर देंगे, घुटना हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। ये ऊपर जाएगा, दाहिने हाथ को बगल में ले जाएंगे इधर, यहां पर भी कोण बनाएगा। और ये दूसरी तरफ थाइस को खींचता है। तो ये जो समकोण आसन हम लोग करते हैं, स्प्लिट करते हैं फॉरवर्ड, वो सब में ये काम आएगा। बैठ जाएंगे। थोड़ा फास्ट है, समय बचाने के लिए 1 घंटे का समय हम लोग के पास रहता है, 15 मिनट डिले ही हुआ, 45 मिनट्स तो उसमें कवर होने हैं। तो उसको धीरे धीरे अभ्यास करने का है, उसको देखते हुए आप देख लीजिए कैसे किया जा रहा है और उसको अभ्यास कीजिए। फिर लेफ्ट लेग पर बैलेंस करेंगे, दाहिने पैर को रैप अराउंड करेंगे ये, और इसको पिंडलियों के पास ऐसे लॉक कर देंगे, इसको ला करके पिंडलियों के पास लॉक कर देंगे। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेट। दाहिने हाथ को बाएं हाथ के अंदर से जा करके प्रणाम की मुद्रा में, ये वैसे ही दाहिने पैरों पर खड़े होंगे, बाएं पैर को सामने से लाएंगे, सामने से, और इसको ऊपर से पिंडलियों के पास लॉक लगा देंगे। अभी ये उल्टा करेंगे, पहले हम लोगों ने क्या किया था, दाहिने को किया था ऐसे, अभी बाएं को ऐसे करेंगे। ठीक है, ये करेंगे। ये थोड़ा सा बैलेंसिंग है इसलिए समय लेगा, तो धीरे धीरे पहले पैर को फंसाने का, फंसा करके इसको इस पर एडजस्ट करने का, बैलेंस करने का इसके ऊपर। जब ये ध्यान इसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर ध्यान चला जाएगा, तब उसके बाद हाथ को। तो ये अभ्यास धीरे धीरे करने से उसमें फिर बैलेंसिंग बनेगा। हाँ? गरुड़ आसन कंसंट्रेशन देता है, बैलेंस है, बॉडी का देता है, तो ये करेंगे। हम लोग उद्यान बंधा आज प्रैक्टिस करेंगे, जिससे अग्निसारा और इसका अभ्यास करने पाए। तो उद्यान बंध में क्या करते हैं, किसी भी पोस्चर में बैठ जाएं आप, ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद आउट करने के बाद सांस लेना छोड़ना बंद करें। इनको बहुत ज्यादा हाई बीपी है, वो देखें अभी, हल्का सा अभ्यास से शुरुआत करेंगे, बाकी लोग फुल फ्लेजेड। हार्ट का इश्यू जिनको है वो लोग थोड़ा सा धीरे जाएंगे। टोटल ब्रीद आउट कर देंगे, होल्ड कर देंगे ब्रेथ, उसके बाद सांस लेना नहीं, छोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना है। चिन को थ्रोट पीट पर लगा देंगे, स्टमक को सक इन करके स्टमक को पीछे स्पाइन के अंदर जितना ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करेंगे, अंदर की तरफ, और होल्ड कर लेंगे उसको। उद्यान बंधा। अग्निसारा में क्या करते हैं, इसको अलग ले जाएंगे, सांस का लेना छोड़ना दोनों बंद, उसके बाद उसको रिलैक्स करेंगे पेट, फिर उसको खींचेंगे सकिन करके अंदर की तरफ, सांस लेना छोड़ना नहीं। ये मूवमेंट स्टमक का ये होगा, ये जो आपका डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाता है, जठराग्नि
उसको प्रज्वलित करता है, डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होता है। और अग्निसारा में पानी पी करके अगर आप कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो उसमें भी ये रिलीफ कर देता है। तो करेंगे हम लोग उद्यान बंद। स्टमक को सकिंग अंदर की तरफ कर लेने का। ओके, तो ये है। और सांस को पूरी तरह से छोड़ेंगे, कंप्लीट ब्रीद आउट, चिन लॉक, जलांध्र बंद, देन सक इन योर स्टमक टुवर्ड्स योर स्पाइन। तो अभी उद्यान बंदा किए, कल हम लोग अग्निसारक का अभ्यास करेंगे कि उसको किस तरह से स्टमक को मूवमेंट होता है, वो कल हम लोग उसका अग्निसारक का अभ्यास करेंगे। अभी हम लोग फिर उज्जयी का प्राणायाम में उज्जयी, उज्जयी मीन्स विक्टोरियस। तो ये काफी पावरफुल है। और इसमें क्या करते हैं, इपोग्लोटिस होता है, विंड पाइप यहाँ, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, उसको नैरो डाउन करते हैं, उसको संकीर्ण बनाते हैं, और उसी से सूदिंग साउंड लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस लेंगे, हल्का सा यहाँ सूदिंग आवाज आएगा यहाँ से गले से। सूदिंग आवाज आएगा। तो अभी बैठेंगे मेडिटेटिव पोस्चर पर, किसी भी, हाथ चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, और ध्यान विशुद्धि चक्र, थ्रोट पिट, थ्रोट सेंटर पर, और इपिग्लोटिस को कंस्ट्रिक्ट करते हुए आवाज निकाल, हल्का सूदिंग आवाज, आवाज बाहर ज्यादा नहीं जाएगी। कंस्ट्रिक्ट करके ये लेंगे, 10 राउंड से 20 राउंड तक आराम से लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी तो अपने आप में बहुत बड़ा है, उसके वो तो बहुत है, लेकिन सीधे जीभ को पलट करके पैलेट की तरफ ले जाने का है, पलट करके उसके बाद ये उज्जयी प्राणायाम करना है। तो आपका जो भी इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई करता है। जीभ को पलट करके अंदर की तरफ ले जाएंगे, जो अंदर की तरफ, वो दिखेगा नहीं, अंदर की तरफ जीभ है ऐसे है, उसको पलट करके अंदर की तरफ ले जाएंगे। ये आपका मुंह का नीचे जाने का मार्ग है, जीभ है, पलट करके पीछे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, पलट करके, जीभ ऐसे निकला हुआ है, इसको पलट करके मुंह के अंदर पीछे की तरफ ले जाएंगे, और फिर उज्जयी का अभ्यास करेंगे। तो ये इसके इफेक्ट हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये करेंगे। तो ये हमारा, और फिर मेडिटेशन का हम लोग हैं कभी अलग से रखेंगे। मेडिटेशन में तो पूरा समय चाहिए, उसमें है चक्रा मेडिटेशन, जो डिफरेंट आपके एनर्जी सेंटर्स हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनहता, विशुद्धि, अजना, सहस्रारा, बिंदु भी है, और भी है, लालना है, ये सब है। तो उसका क्या रोल है, और उसके ऊपर विजुअलाइजेशन के साथ करते हैं। तो जो मेडिटेशन करते हैं वो विजुअलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेशन, आप उसमें जाते हैं, विजुअलाइज करना शुरू करते हैं, इंग्रॉस्ड हो जाते हैं उसके अंदर, फिर सारी चीजें चली जाती हैं, सब विजुअलाइजेशन वगैरह टोटली सब समाप्त हो जाता है। देन इट विल बी कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, और बस आप अपने में रहते हैं। तो वो अभ्यास है, धीरे 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 धीरे, अनवरत है, आसान तो कुछ नहीं। गुड थिंग्स डज नॉट कम चीप इन लाइफ, you have to spend your energy for that.
तो ये है, लेकिन एक वेल बीइंग के लिए, हेल्दी है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, सारा कुछ हो, विल पावर स्ट्रांग हो, शरीर स्ट्रांग हो, उसके लिए आप रेगुलर योगा का अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली कहीं कोई शक, सुबह कोई शंका है ही नहीं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हर हालत में बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी या पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी, काम के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, भारतीय इंफ्राटेल में कर रहे हैं, तो जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट करके उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जब कोई इशू आती है, वी डोंट रिफ्रेन कॉलिंग इट ए प्रॉब्लम, वी कॉल इट इशू। प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम इज देयर, सॉल्यूशन इज देयर, दैट बिकम्स इशू। तो अगर कोई इशू है तो उसको अगर आप डीपर उसके ऊपर ध्यान देंगे, समय देंगे, ध्यान देंगे, तो अलग अलग जगह से आपको पता चलेगा इसको सॉल्व करने के ये अल्टरनेटिव है, ये अल्टरनेटिव है। लाइक चेस, ये करेंगे फिर क्या होगा, फिर हम इधर जाएंगे, फिर वो क्या करेगा, फिर हम इधर जाएंगे। लाइक चेस, यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, और उसके बाद उसके रिजल्ट है, प्रोफाउंड रिजल्ट आएंगे। वो आप लोग करते भी होंगे, मैं ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट कैटेलिटिक काइंड ऑफ पर्सन कि आपको उस चीज को रिमाइंड करा दें जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल नो एवरीथिंग, जस्ट रिमाइंड करने का है कि यस, जिस चीज को आपको इफिशियंसी बढ़ानी है, स्पेंड योर एनर्जी ऑन दैट सिस्टमेटिकली, देन इट विल कम। हमारे विचार से 8 बज चुके हैं, तो हम लोग अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछें। अगर कोई डाउट है कहीं तो प्रयास किया जाएगा, मिलजुल करके हम लोग उसको सॉर्ट आउट करें, उसके ऊपर ये करें। और थोड़ा गुरु प्रणाम करेंगे और क्लोज करेंगे। ओके सर। Okay then, I shall move ahead with closure. Shanti mantra. Sarvesham. Eyes closed. Concentrate on your eyebrow center. Breathing normal. Body in a relaxed, completely relaxed posture. No strain anywhere in the body. Om Sarvesham Swastir Bhavatu. सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ शांति शांति शांति। मैंने आंख खोल दिया था, वो आंख बंद ही रखेंगे, उसके बाद ये हथेलियों से सेक लेंगे। कप बना करके आंखों के ऊपर, आंखों को प्रेस नहीं करना है, उसके ऊपर हथेलियों का कप बना लेने का है और उसको शरीर में पूरा स्पर्श करना है, पूरे शरीर को स्पर्श करना है, और हथेलियों को सामने ला करके उसमें देखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलना। अब मैंने खोल क्यों दिया था, ज्यादा देर आंख बंद ही नहीं किया था ना, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। जब ज्यादा देर आप आंखों को बंद करते हैं तो सडनली ब्लेरिंग लाइट है बाहर की तरफ आप कर रहे हैं, तो सडनली असर पड़ता है, इसलिए उसको वार्म करते हैं, जिससे कि जो रोशनी आए अचानक उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़े। तो साइंस है सबके पीछे। अभी गुरु प्रणाम कर लेंगे, हाथ पीछे ले जा करके, जो भी जिनके प्रति भी आपके मन में श्रद्धा है, आपके बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, ईश्वर हैं, जो भी फेथ से हैं, आप उनको नमन कर लेने का। Slowly lift your head.
Hari Om. Over to you, Dheeraj Ji. Session ends here. Hari Om. It was useful, and in case of, because I know I went a little faster to cover whatever we wanted to during this time limit. So in case of any doubts, feel free. I'm available. Whenever you can post me mail, and at a suitable time, I will reply. Definitely, I will reply to your queries and this thing. Thank you. Hari Om. Hari Hari Om. Om, sir. Hari Om. Thank you. Thank you, sir. Okay, so allow me to leave.